Good evening, everyone. Thank you for joining the session. Welcome to this session of New Labor Code webinar series 2. Akanksha this side, and I'll be your host for today's discussion. We are here to focus on one of the most significant regulatory shift in India's labor framework, the Industrial Relation Code 2020, and what it practically means for employer, HR team, and compliance function on the ground. Today's discussion is designed to go beyond legal provision and focus on real world interpretation where most compliance challenges actually emerge. We have with us Mr. Ashutosh Sinha, co-founder and director at Easy Compliance and a seasoned HR and workforce governance professional with over 2 decades of experience across organizational leadership, people strategy, and labor compliance transformation. Alongside, we have Mr. Rakesh Joshi, director at Talent Compliance India, a compliance and business operation leader over 15 years of experience in labor law compliance, statutory governance, contractor management. Today's session will begin with the insight from Mr. Ashutosh Sinha, followed by Mr. Rakesh Joshi, who will further expand on employer and operational perspective. Also, with this, I would like to request everyone to keep themselves muted during the webinar to avoid any disturbance from outside. And at the end of the session, we will take the question and answer. Good evening, everyone, and thank you for joining this session on the New Labor Code webinar series. And we are very happy to say that this is the second series on that webinar series. And today's discussion, we are looking at the Industrial Relation Code 2020. So we are here today to discuss the Industrial Relation Code 2020, not just as a legislative update, but as a structural shift in how workforce governments and employer relationships are operating in India going forward. To appreciate the significance of this transition, it is important to understand the scale of India's labor market. According to the latest periodic labor force survey, annual report 2025, the labor force participation rate for persons aged 15 years and above stands at 59.3%, with participation rates of 79.1% and for males and 40% for females. At the same time, the worker participation rate population ratio, which reflects the proportion of population that is actually employed, stands at 57.4%, with 76.6% for males and 38.8% for females. This figure represents over 61.6 crore employed persons across the country, which working in a labor ecosystem that spans large enterprises, MSMEs, startups, and the vast informal sector also. In an economy of this scale, every minor changes in labor law interpretation or compliance requirements can have significant operational and commercial implications across industries that we all know. So, in practice, clear transition from multiple fragmented labor laws into more consolidated framework under the new labor codes. While this consolidation improves structures and alignment, it also introduces a critical challenge: how these provisions are interpreted and implemented on the ground. A small deviation in understanding these provisions can lead to issues related during audits, inspections, especially around across like workforce classifications, disputes resolutions mechanisms, and particular compliance during industrial actions or organizational restructuring. So that is why today's discussion is focused primarily on moving beyond next labor, legal, text, and into practical clarity how organizations, HR teams, and compliance functions should actually interpret the apply of industrial relation code in real operating environments.
So on this session, we'll focus on three key areas: what has structurally changed, what areas require heightened attention from the compliance standpoint, and how organizations can redesign internal processes to stay aligned with the new framework. So, with this context, I am welcoming Mr. Rakesh Joshi, who is our Director Compliance in with Talent Compliance India, who will take us on a deeper understanding on how actually the Industrial Relation Code 2020 operates, what are its challenges in the new setup, and he will brief us in a detailed way. So, welcome, Rakesh, and please take it forward. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your warm welcome. And good evening, everyone. So let's start. Let me share my screen first. So hope my screen is visible to everyone. So today we are going to discuss Industrial Relation Code. Industrial Relation Code has three acts, combined three acts: Trade Union Act 1926, Industrial Employment Standing Order Act 1946, Industrial Dispute Act 1947. So if you see, Trade Union Act 1926 enacted during British era. 100 साल लगभग 100 years पुराना है. 1926 पे ये इंट्रोड्यूस हुआ. Today is 2026. It's more than 100 years. Industrial Employment Act first comes into 1946. Industrial Dispute Act comes in 1947. It's almost 75 to 80 years. So there is a requirement to reform all these acts. बहुत ज्यादा जरूरत थी कि ये सब बदले. इस वजह से ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है वो नए रिफॉर्म्स के साथ आया है. तीनों एक्ट्स को यहाँ मर्जर कर दिया गया है. ट्रेड यूनियन एक्ट जनरली टॉक अबाउट द ट्रेड यूनियन, व्हाट इज ट्रेड यूनियन, हाउ दे वर्क, हाउ दे हेल्प टू the workers. Industrial Employment Standing Order Acts talk about the condition, working condition, and the employer rights, duties. Industrial Dispute Acts talk about the strike, lockout, layoff, retrenchment, and closure, etc. So सबसे पहले वी जस्ट स्टडी व्हाट इज एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होती है? जनरली पीपल थिंक्स कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ही इंडस्ट्री है. ये जनरल मिसकंसेप्शन है पूरी मार्केट के अंदर कि जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वही इंडस्ट्री होती है. इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा क्लियर किया गया है इस एक्ट में. तो इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर फॉर द प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विशेस. एसेंशियल एलिमेंट इसके क्या है कि देयर मस्ट बी अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी. सिस्टमेटिक एक्टिविटी इसका मतलब होता है कि रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं है कि आज की गई अगले 6 महीने तक नहीं की जाएगी. तो यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो रेगुलर उस कंपनी में की जा रही है वो सिस्टमेटिक एक्टिविटी कहलाएगी. जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉपरेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का भी. वहां पर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस. वेरी इंपॉर्टेंट इज सर्विस. सर्विस इंडस्ट्री भी यहाँ पर कवर होती है. अगर यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स और सर्विस हो रहा है और वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इन दैट केस दैट कंपनीज बिकम इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री बन जाएगी. यहाँ पर स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन दिया गया है अदर देन प्योरली स्पिरिचुअल और रिलीजियस वांट्स. यानी कि अगर कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस वांट्स के लिए कोई भी काम हो रहा है, जैसे मंदिर, मस्जिद, कुछ भी ऐसा है जहां पर ये एसेंशियल एलिमेंट क्वालिफाई करे, स्टिल उसको आउटसाइड रखा गया इंडस्ट्री की डेफिनेशन में. वो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं मानी जाएगी. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव इज नॉट नेसेसरी. यहाँ पर प्रॉफिट होना कोई जरूरी नहीं है. जरूरी ना नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट करे. ये भी जरूरी नहीं है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है. इवन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मे बिकम इंडस्ट्री इफ ऑल द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड. तो इंडस्ट्री का मतलब सिंपल है, जहां पर एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है, कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड एक्टिविटी शुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दैट बिकम इंडस्ट्री. नाउ
एक्ट सेज देयर आर सम एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या है? डिफेंस इसमें से बाहर किया गया है, जुडिशरी बाहर की गई है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च, डोमेस्टिक सर्विस जो आपके घरों के अंदर मेड वगैरह आ रहे हैं वो सब डोमेस्टिक सर्विस में कवर होता है, इनको भी आउट किया गया है यहाँ से। रिलीजियस एक्टिविटी कोई भी हो, मंदिर मस्जिद, वो सब इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर है। सर्टेन चैरिटेबल एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज जो स्पेसिफिकली चैरिटी के लिए बने हैं और उसको स्पेसिफिकली अलाउ कर रहा है गवर्नमेंट, उसको भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक आईटी कंपनी है जहां पर सिर्फ आईटी के जो है इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जो कि वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या फिर अपना वेब मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या वो भी इंडस्ट्री मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। क्या एक फैक्ट्री जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग होता है कपड़े का, कपड़े बनाए जाते हैं या फिर उसके रॉ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्या वो इंडस्ट्री मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। अगर कोई कंपनी है जहां पर सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है, एक सामान परचेज किया जाता है एंड देन उस पर अपना प्रॉफिट रख के आगे बेच दिया जाता है, क्या वो भी इंडस्ट्री होगी? बिल्कुल इंडस्ट्री होगी। ये सारी की सारी अभी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ रही है। अब एक कंपनी है जिसके अंदर दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और उसने एक चैरिटेबल पर्पज से स्कूल भी खोला हुआ है। एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी दोनों काम कर रही है, एक चैरिटेबल काम भी कर रही है और एक इंडस्ट्री का काम भी कर रही है, उसको किस डेफिनेशन में रखा जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं बाइफरकेट कर सकता हूँ कि मेरा ये फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, इसका मैनेजमेंट अलग है, इसके एम्प्लॉय अलग है, इसके वर्कर अलग है, तो ये सारे जो है इंडस्ट्री आ जाएगा। और अगर मैं स्कूल को, इन दोनों को अगर मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं तो हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। अदरवाइज अगर दोनों ही एक्टिविटीज में आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सकती कि लेट सपोज एक कंपनी का जो है वो दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग भी है और वो दवाइयों के लिए चैरिटी भी कर रही है और वो इसको बाइफरकेट नहीं कर पा रही है किसी तरीके से, तो इन सच केस में जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसकी वो माना जाएगा। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, वो इंडस्ट्री माना जाएगा। अगली डेफिनेशन जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में। इंडस्ट्री तो अभी हमने समझा जो ये चार एक्टिविटीज करे वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वो होती है जहां पर एस्टेब्लिशमेंट वेयर इंडस्ट्री इज कैरिड ऑन, वेयर इंडस्ट्री इज कैरिड ऑन, यानी कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड एंड ही हैज वन फैक्ट्री इन दिल्ली, वन इन मुंबई, वन इन तेलंगाना। इन दैट केस बोथ, ये तीनों फैक्ट्री जो है एक सेपरेट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है भाई। तीनों तीन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि कंसोलिडेटेड नहीं देखेंगे हम, जितने भी प्रमाइस होंगे प्रमाइस वाइज हम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि वहां इंडस्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है। सिंपल। क्या करेक्टरिस्टिक है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के? प्रेजेंस ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस, वर्कर होने चाहिए जिनको हम सैलरी दें। रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय और वर्कर कैन बी टेम्पररी और परमानेंट इन नेचर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो टेम्पररी है या परमानेंट, अगर है तो ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो थ्रेश होल्ड है, जो पूरे कोड के अंदर थ्रेश होल्ड है जो डिफाइन की गई है, लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है 300 प्लस वर्कर में, हम इसको आगे अगली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। बट ये जो थ्रेश होल्ड होनी है ये इंडस्ट्री के ऊपर नहीं होनी है, ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होनी है। यानी कि इफ एनी कंपनी हैव टू फैक्ट्री तो वो दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल हो सकता है अगर थ्रेशोल्ड दोनों में पूरी की जा रही है तो स्टैंडिंग ऑर्डर, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, वर्कर कमिटी, जीआरसी कमेटी, ये सब के लिए जो थ्रेशोल्ड है ये हमें इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वाइज चेक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज वर्कर, हु इज एम्प्लॉय? इन अर्लियर लॉ, इन करंट लॉ देयर इज नो explanation on this. So there are multiple dispute cause cases running in a court and labor department कि कौन वर्कर है कौन वर्कर नहीं है, किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा। सी, पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है वो वर्कर के ऊपर लगता है, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं लगता। तो सबसे पहले अभी कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंपनीज को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनकी कंपनी में कौन एम्प्लॉय है एंड कौन वर्कर है, क्योंकि वर्कर के ऊपर ही ये सारा कोड लग रहा है। जितने भी यहाँ पर फैसिलिटी, जितने भी यहाँ पर कोड के अंदर प्रोविजंस हैं, जितने भी डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब वर्कर के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो कंपनीज हैज टू डिसाइड कि हु इज एम्प्लॉय, हु इज वर्कर। तो सबसे पहले लेट्स सी द एम्प्लॉय डेफिनेशन। एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस वो होता है जो एज पर अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू कोई ट्रेनी हम हायर करते हैं नैप्स नेट्स के थ्रू, उनको छोड़ के एनी एम्प्लॉय डू any skilled, semi skilled, unskilled, manual,
ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। यानी कि हर बंदा आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हो सकता है। एम्प्लॉय डेफिनेशन इज वेरी वेरी ब्रॉड, so everyone can be an employee because he do every type, इसके they cover the unskilled employee as well, so everyone can be employee. However, any member of armed forces of the union has been specifically excluded। जो armed force हैं, जो union means सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो फॉल करते हैं, वो सारे armed force के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसमें कवर नहीं होते। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन इज दिस। नाउ कम इनटू वर्कर डेफिनेशन। हु इज वर्कर? Worker means same any person except an apprentice under the Apprenticeship Act 1961 employed in any industry to do manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward whether the terms of employment be express or implied। अब आप देखेंगे कि एम्प्लॉय और वर्कर की डेफिनेशन लगभग लगभग सेम नजर आ रही है, सेम ही लग रही है, क्योंकि सेम पैरामीटर्स यहाँ है, सेम पैरामीटर्स एम्प्लॉय में थी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आता है यहाँ पर कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आप यहाँ पर कुछ इंक्लूड किए गए, लाइक वर्कर, वर्किंग जर्नलिस्ट, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उसके अंदर जितने जर्नलिस्ट हैं वो वर्कर की कैटेगरी में डाल दिए गए सीधा सीधा। मतलब उनके अंदर वो सीधा, अगर कोई भी जर्नलिस्ट और मीडिया से रिलेटेड जो भी काम कर रहा है वो सीधा के सीधा वर्कर डेफिनेशन में आ जाता है। दूसरा, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज अंडर एक्ट 1976, सेल प्रमोशन एक्ट के थ्रू जो सेल प्रमोशन वाले एम्प्लॉय है वो भी वर्कर की डेफिनेशन में आ रहे हैं। नाउ एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड के अंदर आर्म्ड फोर्सेस वर्कर नहीं माने जाएंगे, पुलिस फोर्स नहीं मानी जाएगी, employed mainly in managerial or administrative capacity, very important to understand, employed mainly in managerial और administrative capacity। यानी कि अगर कोई भी वर्कर कंपनी के अंदर मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट रखता है, यानी कंपनी के बिहाफ में कोई भी मैनेजरियल डिसीजन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, उसके पास ये राइट है, तो वो वर्कर नहीं रहेगा, वो एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट, एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग द वेजेस एक्सीडिंग रुपीज 18,000। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय है जो सुपरवाइजरी रोल पे है, ही हैज सम टीम, like he has 5 members, 6 members in his team, and he's a leader, he's a team leader, he's a supervisor, और उसका सैलरी इज मोर देन 18,000। इन दैट केस ही कम आउट फ्रॉम द वर्कर परव्यू एंड बिकम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो अब हर कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कौन वर्कर कौन एम्प्लॉय। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक सुपरवाइजर है जिसके अंदर 6 बंदों की टीम है, एंड ही लीड दैट 6 people, and his salary is 15,000 rupees। In that case, he is a worker because the threshold limit is 18,000 rupees। अगर उसका 15,000 सैलरी है तो वो स्टिल वर्कर कहलाएगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके अंदर एक ब्रांच मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, और उनका सैलरी जो है वो 20,000 रुपीज है। क्या वो वर्कर रहेंगे या एम्प्लॉय रहेंगे? वो एम्प्लॉय रहेंगे, बिकॉज ही इज अ फैक्ट्री मैनेजर, एंड फैक्ट्री मैनेजर के अंदर पूरी टीम होती है और वहां के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं वो ब्रांच फैक्ट्री मैनेजर लेता है। तो इन दैट केस ही बिकम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। नाउ वी कैन से, अगर यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है कंपनी में, जैसे लेट्स सपोज इज आईटी कंपनी, आईटी कंपनी कहती है कि मेरे यहाँ पर तो जो एम्प्लॉय आता है वो डेस्क जॉब करता है, एंड ही इज टेकिंग अ गुड मनी, ही इज टेकिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो उसके लिए भी पैरामीटर्स वही देखे जाएंगे कि क्या उसके पास मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, तो नहीं है, बिकॉज वो सबसे लास्ट पायदान पर है। तो ना तो उसके पास कोई मैनेजरियल राइट है लेने के लिए, और ना ही कोई वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकता है, यानी कि कंपनी के बिहाफ पे वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। देन द सेकंड चेक, इज ही अ टीम लीडर और सुपरवाइजर, इज ही हैज सम टीम, इसके पास कोई टीम है क्या नीचे? नहीं है। तो ना तो उसके पीछे नीचे कोई टीम है, ना ही वो कोई मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकता है। तो इन दैट केस ही बिकम्स वर्कर ऑफ द कंपनी। तो उसकी सैलरी चाहे 1 लाख रुपए हो, सैलरी इज नॉट द राइडर हियर। वी जस्ट नीड टू चेक द डेजिग्नेशन, एंड डेजिग्नेशन भी नहीं है, रोल, कि कंपनी में उसका रोल क्या है। कंपनी में वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मर है। तो अभी सभी कंपनीज को, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, सबको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी के अंदर वर्कर कौन है और एम्प्लॉय कौन है। तो नाउ देर इज वन मोर कैटेगराइजेशन। जब आप कंपनीज में अपना पेरोल या फिर मास्टरशीट बनाते हैं तो उसके अंदर आप डेजिग्नेशन लिखते हैं, डेजिग्नेशन के बाद आप उनका ग्रेड सिस्टम लिखते हैं। नाउ इट इज एडवाइजेबल टू आइडेंटिफाई हु इज एम्प्लॉय, हु इज वर्कर। नाउ
because this IR code is applicable on workers. Now the next provision is work committee. Work committee क्या चीज होती है? Here they are saying कि if any industrial establishment, कोई एक फैक्ट्री के अंदर, किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर 100 प्लस वर्कर हो गए किसी भी any day during the preceding 12 months, the appropriate government may require the employer to form work committee. May require, that means it is not compulsory. वर्क कमेटी अभी कंपलसरी नहीं है, वर्क कमेटी का एक प्रोविजन है कि वर्क कमेटी बनाई जा सकती है अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इसको लगाना चाहिए। अब इसकी की ड्यूटीज क्या है? अगर वर्क कमेटी बनती है तो उसकी ड्यूटीज ये है टू प्रमोट हार्मनी, टू मेंटेन रिलेशन, डिस्कस कॉमन कंसर्न एंड रिजॉल्व मटेरियल डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर। एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कुछ भी ऐसा नेगोशिएशन है तो वर्क कमेटी कर सकती है। अब इसके जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से भी और एम्प्लॉय की तरफ से भी। तो वर्क कमिटी इज नॉट नेसेसरी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी इज नेसेसरी, ये कंपलसरी है। अगर आपकी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, यानी आपकी अगर 5 फैक्ट्री है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, 2 स्टोर्स हैं, 3 वेयर हाउस है, तो ये सभी एक अलग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा 20 और मोर वर्कर हो गए कि नहीं हो गए। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एम्प्लॉय और वर्कर में से कौन है, देन आप यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज वर्कर। नाउ यू नीड टू चेक 20 और मोर वर्कर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जहां हो रहे हैं वहां पर आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी फॉर्म करनी पड़ेगी। An equal representation of employer and worker with a maximum of 10 members, chairperson to rotate yearly between employer and work representative। वर्कर के रिप्रेजेंटेशन के अंदर वुमेन वर्कर का एडुकेटली रिप्रेजेंट होना जरूरी है। यहाँ पर वुमेन को पावर दी गई है कि ऐसा नहीं है कंपनी में सिर्फ हम मेल रिप्रेजेंटेटिव रख देंगे इस कमिटी के अंदर, एंड फीमेल का होना भी बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू देयर वर्कफोर्स स्ट्रेंथ। ग्रीवियंस प्रोसेस क्या है? वर्कर में फाइल ग्रीवियंस विद इन 1 ईयर, यानी अगर कोई भी इंसिडेंट होता है लाइक उसको इलीगल टर्मिनेट किया गया, ओवर टाइम नहीं दिया गया, बोनस नहीं दिया गया, या कोई भी सर्विस कंडीशन से लेकर कुछ भी उसके साथ उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, देन इंसिडेंट हैपन से 1 साल के अंदर तक वो ग्रीवियंस फाइल कर सकता है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी में। एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी को विद इन 30 डेज के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो 30 दिन के अंदर डिसीजन नहीं ले पाती, देन वर्कर में अप्रोच टू कंसिलेशन ऑफिसर यानी डिपार्टमेंट में विद इन 60 डेज, एंड उसके आफ्टर ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी एक इंटरनल कमेटी होगी जो कि वर्कर और एम्प्लॉयर के इक्वल रिप्रेजेंटेशन से बनेगी, जिसका काम होगा कि कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको इंटरनली रिजॉल्व करे और नेगोशिएट करके वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में। अगर वो डिसीजन ले सकती है, ले पाती है, रिजॉल्व कर पाती है विद इन 30 दिन, दैट इज गुड। इफ इट इज नॉट, देन वर्कर हैज अ राइट टू गो टू कॉन्सिलेशन ऑफिसर एंड ट्रिब्यूनल। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन एक्ट खत्म हो गया, रिपील हो गया, नाउ दे कम अंडर द ट्रेड यूनियन। व्हाट इज ट्रेड यूनियन? Trade union is an organization formed by workers to protect their right, interest and welfare through collective action. So trade union क्या होता है? Because let's take an example, एक कंपनी के पास 1000 वर्कर है। Now 1000 वर्कर को सबको अलग अलग समस्या हो सकती है। Everyone has their own problem. They go to the employer, but employer doesn't have that much time कि वो एक एक की कंप्लेंट वन बाय वन सुने। अगर वो यही में लग गया तो बिजनेस कैसे वो आगे चलाएगा? So it's very difficult to go and sit with each and every worker and resolve their disputes. So in that, इसके लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म की जाती है। तो ट्रेड यूनियन इज जनरली वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में वो एज अ ब्रिज का काम करती है, जो कि वर्कर के राइट्स को लेकर जो भी उसके राइट, इंटरेस्ट, वेलफेयर को लेके डिस्कशन करती है एम्प्लॉयर के साथ और उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करती है। नाउ ट्रेड यूनियन के लिए भी इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट डाल दी है। नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए एटलीस्ट 7 वर्कर होने जरूरी है। मिनिमम 7 वर्कर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। सेकंड कंडीशन इज 10% ऑफ वर्कर और 100 वर्कर इन एन एस्टेब्लिशमेंट विच एवर इज लोअर। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कंपनी के पास 400 वर्कर है, तो उसकी 2 कंडीशन आई कि या तो 100 या 10% ऑफ टोटल वर्कर यानी 40 एम्प्लॉय, विच एवर इज लेस, यानी 40 है तो क्या वो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 7 से ज्यादा है
और दूसरी कंडीशन मेरी 10% और 100 वर्कर में 40 एम्प्लॉइज कम है, तो वो ट्रेड वर्क कर सकता है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास 60 ही वर्कर, तो 60 वर्कर का अगर मैं 10% करूं, तो वो 100 वर्कर वाली भी कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा, और उसका 10% 6 बनता है, तो 6 जो है वो मिनिमम 7 वर्कर से कम है, तो यहाँ पर वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकता। तो ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए मेरी दो कंडीशन है, कम से कम 7 वर्कर या 10% ऑफ वर्कर और 100 वर्कर इन एन एस्टेब्लिशमेंट विच एवर इज लोअर। अगर वो एग्रीड है तो दे कैन मेक अ ट्रेड यूनियन। कैन ट्रेड यूनियन बी मेड इन सर्विस कंपनी? यस, बनाई जा सकती है, आईटी कंपनी में बनाई जा सकती है, जरूरी नहीं है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में भी ट्रेड यूनियन बनाई जा सकती है। अब ट्रेड यूनियन को भी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जहां पर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बाय लॉज होते हैं, उसको अपनी एनुअल मेंबरशिप फीस देनी होती है, उसकी भी बैलेंस शीट बनती है, पीएनएल बनता है, बिकॉज ट्रेड यूनियन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसको भी एक कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो उसके भी अपने लॉ हैं जो पूरे इस एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज राइट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन के राइट क्या होते हैं? ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के राइट है। अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज नाउ नहीं कर सकती रिप्रेजेंट, कभी पहले करती थी, अब नहीं कर सकती, अब वही ट्रेड यूनियन मानी जाएगी जो रजिस्टर्ड होगी। नाउ राइट्स इज रिप्रेजेंट वर्कर्स इन ग्रीवियंस एंड डिस्प्यूट्स। जीआरसी जो भी ग्रीवियंस सेल है, वहां पर ट्रिब्यूनल्स के अंदर एम्प्लॉयर के पास सोल नेगोशिएशन के अंदर ट्रेड यूनियन जाएगी और ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर वो नेगोशिएट करेगी। पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोई भी अगर नेगोशिएशन करना है, बार्गेनिंग करनी है, वो करेगी। एक्सेस टू वर्क प्लेस फॉर यूनियन एक्टिविटीज, वो उनके वर्क प्लेस को विजिट कर सकती है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग कंडीशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर इंटरफेस और कोइसन, एग्जेम्पशन फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। ट्रेड यूनियन के अगर ट्रेड यूनियन के साथ कुछ गलती होती है, ट्रेड यूनियन के ऊपर कोई केस बनता है, तो उसको सिविल लायबिलिटी नहीं आती उसके ऊपर, यानी कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी ट्रेड यूनियन के ऊपर। ट्रेड यूनियन का केस ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा, ना कि कोई कोर्ट। सेलेंट स्पेशल फीचर है स्ट्रिक्टर डेफिनेशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ट्रेड यूनियन के जो इस वक्त के प्रोविजन है वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को रोकने के लिए बनाए गए हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो यूनियन को कंट्रोल ना कर ले। अर्लियर क्या होता था कि यूनियंस के अंदर एम्प्लॉयर अपने ही बंदे बैठा देते थे ताकि उनको कंट्रोल कर सके। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। वर्कर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग यूनियन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स अफेक्टिंग वर्कर्स। अब करंट लॉ में एक प्रॉब्लम और थी जो इस वक्त नए कोड के अंदर उसको पूरी तरीके से एड्रेस कर दिया गया है। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि एक कंपनी मल्टीपल ट्रेड यूनियन भी बना सकती है, यानी कि इफ कंपनी इज हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 5000 वर्कर, और इन दैट केस कंपनी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पर कंपनीज जो वर्कर्स होते थे वो मल्टीपल ट्रेड यूनियंस भी बना लेते थे। अब प्रॉब्लम ये होता था कि मल्टीपल ट्रेड यूनियंस के मल्टीपल डिस्प्यूट एम्प्लॉयर के साथ चल रहे हैं, कुछ नेगोशिएशन पर हैं, कुछ काउंसलिंग में चल रहे हैं, कुछ ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, कुछ कोर्ट में चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन का बहुत ज्यादा टाइम तो इसी बात पे वेस्ट हो जाता था कि किस ट्रेड यूनियन की पहले सुने। तो पहले प्रॉब्लम ये था कि एक एक एम्प्लॉय की सुने, उसको खत्म करने के लिए ट्रेड यूनियन लाए। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि ट्रेड यूनियन भी मल्टीपल है, तो मल्टीपल ट्रेड यूनियन अभी भी है, इट इज स्टिल इन द न्यू कोड, बट नाउ देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएशन यूनियन। तीन केसेस से समझते हैं। केस नंबर वन, इफ एनी कंपनी इज हैविंग ओनली वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर एक कंपनी के पास एक ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो क्या करना है? तो इन दैट केस वो जो ट्रेड यूनियन है वो ही सोल नेगोशिएशन है, वो ही करेगी सारी नेगोशिएशन, एम्प्लॉयर के साथ भी, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी और जितने भी अथॉरिटीज के साथ है वो ही करेगी। सेकेंड केस, मल्टीपल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, बहुत सारी ट्रेड यूनियन बन गई हैं, एक से ज्यादा बन गई है। तो यहां पर क्या होगा कि जिस ट्रेड यूनियन के पास 51% और मोर वर्कर का सपोर्ट होगा, वो ट्रेड यूनियन जो है वो सोल नेगोशिएशन बन जाएगी, और वो ही सारे वर्कर्स को, कंपनी के सारे डिस्प्यूट, सारे मैटर्स वो ही डिस्कस करेगी, मैनेजमेंट के साथ भी और अदर अथॉरिटीज के साथ भी। केस नंबर थ्री, जहां किसी भी यूनियन में, मतलब 6 मेरी ट्रेड यूनियन बन गई लेकिन किसी के पास भी 51% का सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि वो जितनी भी ट्रेड यूनियन है, लेट सपोज मेरी 6 में से 3 में 20% और मोर का सपोर्ट है मेंबर्स का, वर्कर्स का, तो उन तीनों में से मैं जो है मेंबर्स लूंगा और एक सोल नेगोशिएशन कमेटी बनानी पड़ेगी, नेगोशिएशन काउंसिल। ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है करना कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन, यानी कि सिंगल ट्रेड यूनियन नहीं है,
मल्टीपल ट्रेड यूनियन में किसी भी एक ट्रेड यूनियन के पास 51% का सपोर्ट नहीं है, तो मल्टीपल ट्रेड यूनियन के अंदर जिस जिसके पास 20% का सपोर्ट है वहां से मेंबर्स लेगा हर एक से, और एक नेगोशिएशन काउंसिल बनाएगा जो आगे जाके नेगोशिएशन करेगा। सो दिस बेनिफिट इज क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। सबको पता है कि वर्कर्स के लिए कंपनी में कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग, इससे एक बार्गेनिंग जो है वो और जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होता है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में। रिड्यूस इंटर यूनियन राइवलरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड यूनियन की आपस की राइवलरी इससे खत्म होती है कि किसका मैटर पहले सुना जाए। बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन होता है एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इंट्रोड्यूस इन दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। The last thing is compliance requirement, that trade union is also required to do their compliances. Like they need to submit form the annual return. They have to audit their balance sheet, P&L account. They have to report the final member count and executive changes if any happen. Then tax filing, they have to file ITR file by 31st of October. And in case of non-compliance, if any trade union is not follow any of the provision of this act, in that case पेनल्टी में भी इंट्रोड्यूस, और नॉन कंप्लाइंस रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ यूनियन रजिस्ट्रेशन, उसका यूनियन जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। सेकेंड थिंग इज, जो दूसरा एक्ट यहाँ पर मर्ज हुआ था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। एंड व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर आर द रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट ले डाउन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट गवर्निंग द कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ वर्कर्स। सो क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टैंडिंग ऑर्डर इज फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल इन मोर देन 300 एस्टेब्लिशमेंट, जिस भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का 300 प्लस वर्कर है उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है स्टैंडिंग ऑर्डर का। स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफिकेशन कराना जरूरी है। व्हाई इट इज नेसेसरी? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द की मैटर्स कवर्ड इन स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर किस चीज पर बात करता है? स्टैंडिंग ऑर्डर टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंगेजमेंट, hours of work and weekly holidays, leave and medical benefits, overtime rates and payment, shift arrangements and rotations, grievance procedures, suspension and dismissal procedures, conduct and disciplinary rules, penalties for misconduct. तो इन सब के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर बात करता है। तो नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्टिफाई ऑफ दिस स्टैंडिंग ऑर्डर, कि अगर कोई डिस्प्यूट कोर्ट के पास जाता है, ट्रिब्यूनल के पास जाता है, तो दे वेरी मच अवेयर कि व्हाट इज द कंपनीज रूल। उसी के बेसिस पर जो है कोर्ट जो है एक डिसीजन लेता है कि इस जो एम्प्लॉय का जो केस है उसके ऊपर जो फेयर डिसीजन कैसे लेना है वो इसके बेसिस पर डिफाइन होगा, क्योंकि रूल वहां पे ऑलरेडी होते हैं कोर्ट के पास। नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट इज मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हर स्टेट, अभी रूल्स आने बाकी हैं, एज एंड व्हेन द रूल्स कम इनटू द पिक्चर एवरी स्टेट हैज गिव देयर मॉडल स्टैंडिंग रूल्स, कि अगर कोई कंपनी अपने रूल बना के नहीं सर्टिफाई कराना चाहती तो वो मॉडल स्टैंडिंग है, यानी कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये रूल बना रहे हैं आप उसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो। इन दैट केस आपको वही स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उसका एक इंटीमेशन लेटर डिपार्टमेंट को सबमिट कराना होगा कि वी आर फॉलोइंग द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एज एज इट इज आप उसको भी ले सकते हो। जो 300 से लेस वर्कर वाली कंपनी है उसके केस में ये मैंडेटरी नहीं है, तो यानी कि वो खुद जो अपनी पॉलिसीज बनाएगी, खुद जो अपनी पॉलिसीज जो HR एम्प्लॉइज रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होगी डिस्प्यूट के टाइम पे वो कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर एक सजेशन ये है सभी कंपनीज के लिए कि वो सीधा सीधा मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को ही अपनी पॉलिसी बना ले या उसके सारे प्रोविजन ले ले, बिकॉज उसके अंदर जो है आप जो भी पॉलिसी बनाओगे आप एम्प्लॉयज को लीनियंट हो सकते हो, टफर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉ कह रहा है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कह रहा है कि 18 पेड लीव दी जानी चाहिए किसी एम्प्लॉय को, और अगर आप उसको 17 देते हो एज पर योर रूल, कंपनी रूल, तो वो रूल जो है वो माना नहीं जाएगा, ये गलत है। तो इन दैट केस आप 19 दे सकते हो उसको लेकिन 17 नहीं दे सकते। तो इट इज एडवाइजेबल टू अडॉप्ट द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एज इट इज। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? Clear and transparent rules for all, reduce dispute over work conditions, standard procedure for all establishment, protection for both worker and employers। एक बार आप स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट कर देते हो तो एवरी एम्प्लॉयर एंड अथॉरिटी सबको पता है कि कंपनी के ऊपर क्या रूल रख रहे हैं और किस बेसिस पर उसके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं वो डिसीजन लिया जा सकता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को समझ लेते हैं बिकॉज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो यहाँ पर मर्ज हो गया है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट?
An industrial dispute means any dispute or difference between employer and employer, employer and worker, worker and worker. अब you may be confused कि employer and employer क्या होता है. So we'll give example after that. The condition is that the dispute must relate to employment, non-employment, terms of employment, condition of labor. एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में किस तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं? वर्कर कह रहा है, एग्जांपल से समझते हैं, वर्कर कह रहा है कि मुझे ओवर टाइम नहीं दिया गया, मुझे बोनस ठीक नहीं दिया गया, मेरे वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ा दिए गए, मुझे वीकली ऑफ नहीं मिला. इस तरीके से सर्विस रिलेटेड कंडीशन पे वो डिस्प्यूट हो सकता है. हो सकता है एम्प्लॉयर बोले कि मुझे, वर्कर ये कहे कि मेरा जो टर्मिनेशन हुआ है विदाउट प्रॉपर रीजन हुआ है. तो इस तरीके के डिस्प्यूट जो है वो एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हो सकते हैं. वर्कर एंड वर्कर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है. वर्कर एंड वर्कर के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है रिलेटेड टू देयर पोजीशन, रिलेटेड टू देयर डेजिग्नेशन, देयर वर्क लोकेशन, सीनियोरिटी के बेसिस पे कि कौन सीनियर है, किसकी किसको सुननी है. इसके बीच में भी वर्कर और वर्कर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है. एंड एम्प्लॉयर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है. लाइक एक कंपनी में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं. तो कॉन्ट्रैक्टर्स और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है बोथ आर एम्प्लॉयर, तो दोनों के ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है रिलेटेड टू इफ एनी एम्प्लॉय रेज वन कंसर्न की उसको ओटी नहीं दिया गया या फिर कोई पुराने वेजेस थे जो नहीं दिए गए. तो इसको लेके एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी अगर डिस्प्यूट होगा तो वो सब जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कवर होगा और उसके डिसीजन जो है कंसिलेशन ऑफिसर और ट्रिब्यूनल के थ्रू लिए जाएंगे. अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कुछ डेफिनेशन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो रोटेट होता है. तो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज स्ट्राइक. स्ट्राइक मींस टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कर्स. यानी वर्कर्स ने स्ट्राइक अनाउंस कर दी है. वर्कर कह रहे हैं कि उनकी कोई सर्विस कंडीशन है जो नहीं पूरी हुई या उसको मिनिमम वेजेस नहीं देखा. अभी आपने नोएडा के अंदर देखा होगा कि एक स्ट्राइक हो गया था मिनिमम वेजेस नहीं बढ़ने की वजह से. तो इस तरीके की स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉई के थ्रू किया जा सकता है. ये एम्प्लॉई का टूल होता है. तो ऑर्गेनाइज, अब इसके अंदर कौन कौन सी टर्म इंक्लूड है? ऑर्गेनाइज्ड रिफ्यूजल टू वर्क. एम्प्लॉयज ने काम करने से ही मना कर दिया है या काम को स्लो कर दिया है. तो स्लो जो कर दिया है उसको भी स्ट्राइक की कंडीशन में ही लिया जाएगा. यहाँ पर कंडीशन ये है कि दे मस्ट हैव गिवन 14 डेज नोटिस. ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि कम से कम 14 दिन का नोटिस एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा. कल से स्ट्राइक नहीं शुरू होगी. अभी तक क्या था कि कल से भी स्ट्राइक शुरू हो जाती थी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था लॉ के अंदर. नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस द 14 डेज प्रायर नोटिस. लॉफुल स्ट्राइक्स हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी. तो इसके अंदर पूरी जो है प्रोटेक्शन होगी लीगल लाइबिलिटी की. अंदर कोई भी तोड़फोड़ कंपनी में नहीं की जाएगी. वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक्स आर अनलॉफुल. अगर आपने 14 डेज का नोटिस नहीं दिया है या आपका मैटर ऑलरेडी कंसिलेशन में चल रहा है, कंसिलेशन में चल रहा है या ट्रिब्यूनल में चल रहा है जिसका भी डिसीजन आना पेंडिंग है, तो जब तक वो डिसीजन नहीं आता आप स्ट्राइक नहीं कर सकते. इंक्लूड्स मास कैजुअली. ये एक नया इंक्लूजन है. अगर किसी कंपनी के अंदर कोई डिमांड्स है वर्कर की और वो पूरी नहीं हो पाई तो हुआ क्या कि नेक्स्ट डे पे आधी कंपनी ने 50% पॉपुलेशन ने कैजुअल लीव ले ली इकट्ठी. तो मास कैजुअल लीव भी स्ट्राइक की डेफिनेशन में आ जाता है. तो दिस इज अ टूल बाय एम्प्लॉय वर्कर, जहां पर वर्कर स्ट्राइक पे जाता है, जहां वो टेम्पररी काम को रोक देता है. व्हाट इज लॉकआउट? लॉकआउट मीन्स टेम्पररी क्लोजर बाय एम्प्लॉयर साइड. स्ट्राइक जो था वो एम्प्लॉय की साइड से क्लोजर था. नाउ लॉकआउट इज अ टेम्पररी क्लोजर बाय द एम्प्लॉयर साइड. एम्प्लॉयर स्टॉप प्रोवाइडिंग वर्क. एम्प्लॉयर ने काम देना ही बंद कर दिया. उसके रीजन है, जैसे यहाँ पर मिनिमम वेजेस को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है कि वेजेस बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए. लास्ट इंक्रीमेंट मेरा 2 साल पहले हुआ था, अभी बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने. एम्प्लॉयर इज सेइंग कि देयर इज नो प्रॉफिट इन द कंपनी, देयर इज नो इंक्रीमेंट. एंड वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है. डिस्प्यूट को चल के लॉकआउट एम्प्लॉयर ने कर दिया. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के पास ये टूल एम्प्लॉयर का होता है, जहां एम्प्लॉयर स्टॉप प्रोवाइडिंग वर्क, यूज टू कंपेल वर्कर टू एक्सेप्ट टर्म, रिक्वायर 14 डेज नोटिस हेयर. इस केस में भी अगर एम्प्लॉयर भी बंद करेगा तो उसे भी 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा. तो स्ट्राइक और लॉकआउट ऐसा पीरियड होता है जहां पर एम्प्लॉय कोई काम नहीं करता और ना ही यहाँ पर कोई पेमेंट दी जाती है. एम्प्लॉयर पेमेंट भी नहीं करता है और एम्प्लॉय काम भी नहीं करता है. तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट इज दिस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ले ऑफ. What is layoff? Layoff means temporary suspension of employment. ले ऑफ क्या है? लॉकआउट तो हुआ जहां पर एम्प्लॉयर ने बोला कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, चलो मैं कंपनी बंद कर देता हूँ 15 दिन के लिए. तो ये तो था जबरदस्ती जहां पर हो रहा है. लेकिन ले ऑफ का मतलब होता है दैट इज नॉट इन टर्मिनेशन,
ये टेम्पररी होता है, और ये होता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क। रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, पीछे से ऐसी कंडीशन हो गई, जैसे कोविड की कंडीशन हो गई है, या फिर सप्लाई ऑफ गैस ही रुक गई है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल रुक गया, जो जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से काम ही नहीं दिया जा सकता। तो इन दैट केस में ले ऑफ का प्रोविजन आता है। ले ऑफ जो होता है वो टेम्पररी होता है, टर्मिनेशन नहीं होता। और यहाँ पर ले ऑफ की कंडीशन के अंदर सैलरी दी जाती है, कंपनसेशन दिया जाता है। अब नाउ द कंडीशन इज, इफ एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैज 300 प्लस वर्कर, अगर 300 प्लस वर्कर है तो इस केस में प्रायर परमिशन टू गवर्नमेंट लेनी पड़ेगी कंपनीज को, कि हम ले ऑफ कर रहे हैं कुछ एम्प्लॉयज को। अगर वो 300 से कम है तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ले ऑफ किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट इज अ परमानेंट टर्मिनेशन फॉर ऑपरेशनल। अब रिट्रेंचमेंट जो है वो परमानेंट टर्मिनेशन होता है, नॉट ड्यू टू मिसकंडक्ट। यहाँ पर ड्यू टू इकोनॉमिक और टेक्निकल रीजन, टेक्नोलॉजिकल रीजन आ सकता है। हो सकता है आपका कंपनी ने एक प्रोजेक्ट उठाया था, वो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो गया या खत्म हो गया, या वो बीच में ही जो है वो क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट हो गया और वो प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, या फिर कंपनी के पास अभी इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, वो बिल्कुल लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट हो गया। तो जहां पर भी इस तरीके की चीजें होती है वहां रिट्रेंचमेंट आ जाता है। एंड रिट्रेंचमेंट के केस में जो है, अगर आपकी कंपनी 300 प्लस वर्कर की है तो आपको प्रायर परमिशन लेनी है रिट्रेंच करने से पहले, यानी एम्प्लॉय को हटाने से पहले आपको परमिशन लेनी है। और अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो अगर आपकी कंपनी 300 प्लस है तो आपको उसको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, प्लस एवरी ईयर का 15 डेज एवरेज का सैलरी देना पड़ेगा, लाइक लाइक ग्रेचुटी। यानी अगर एक एम्प्लॉय ने 5 साल आपकी कंपनी में काम किया और अगर आपने उसको रिट्रेंच किया तो आपको उसको 15 दिन की सैलरी फॉर एवरी 5 ईयर देनी पड़ेगी, प्लस रीस्किलिंग फंड कंट्रीब्यूशन। ये हमें डिटेल में भी पढ़ेंगे। रीस्किलिंग फंड एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जहां पर 15 डेज की सैलरी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। द लास्ट टर्मिनोलॉजी इज क्लोजर, परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑपरेशन। कंपनी सिक हो गई है, कंपनी के पास ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो यहाँ पर वो अपनी कंपनी को ही शट डाउन कर रहा है, पूरी कंपनी ही शट डाउन हो रही है। तो यहाँ पर भी सेम जो है 15 डेज का एवरेज दिया जाएगा। नोटिस पीरियड जो है वही 90 डेज का जो है फॉलो किया जाएगा। 300 प्लस वर्कर के ऊपर प्रायर परमिशन टू कंपनी गवर्नमेंट लिया जाएगा। Now there is a provision of section 62 and 63, prohibition of strike and lockout। अब आपने देखा स्ट्राइक और लॉकआउट जो है ये टूल है जो कि आपस के डिस्प्यूट के वजह से किए जा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशन पूरी नहीं हो रही या एम्प्लॉयर मान नहीं रहा है, तो इस केस में स्ट्राइक और लॉकआउट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रोहिबिशन है कि आप कब कब नहीं कर सकते। विदाउट सर्विंग अ वैलिड स्ट्राइक लॉकआउट नोटिस विद इन 40 डेज, यानी 14 दिन का जो नोटिस का कॉन्सेप्ट है उसको दिए बिना आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। बिफोर द डे, ड्यूरिंग कंसिलेशन प्रोसीडिंग एंड 7 डेज देयर आफ्टर, यानी कि कंसिलेशन ऑफिसर के पास आपका केस चल रहा है, कंसिलेशन ऑफिसर से अभी डिसीजन नहीं आया है या डिसीजन आ गया है, आने के 7 दिन के अंदर अंदर तक आप अगली स्ट्राइक नहीं कर सकते। आपने एक स्ट्राइक करने के लिए नोटिस दिया, लेकिन उस कंडीशन को जो है एम्प्लॉयर ने कंसिलिएशन ऑफिसर के पास ले गया, अभी वहां पे चल रहा है मैटर, अभी डिसीजन आ गया है, मे भी हो सकता है वो एम्प्लॉय के फेवर में ना आया हो, एम्प्लॉयर के फेवर पे आ गया है, लेकिन उसके 7 दिन तक एम्प्लॉय को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। अगर आपका मैटर कंसिलेशन से ऊपर आर्बिट्रेशन, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल पे चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग के दौरान भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते या उसके डिसीजन आने के 60 डेज तक नहीं कर सकते। तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड एनकरेज द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिफोर रिजॉर्टिंग टू स्ट्राइक और लॉकआउट। इसका मतलब पर्पस यही है कि स्ट्राइक और लॉकआउट ना हो उतना, क्योंकि उससे इंडस्ट्री को भी लॉस है, एम्प्लॉयज को भी लॉस है और देश को भी लॉस है, क्योंकि वहां से इकोनॉमी स्टॉप होती है। अगर कोई भी इंडस्ट्री रुकती है तो उससे कंपनी की जीडीपी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ व्हाट इज सेक्शन 63, इलीगल स्ट्राइक्स एंड इलीगल लॉकआउट्स। अ स्ट्राइक और लॉकआउट शेल बी कंसिडर्ड इलीगल। ये इलीगल कब माना जाएगा? जब वायलेशन ऑफ सेक्शन 62 हो जाएगा, यानी कि जो 62 के अंदर प्रोविजन लिखे हैं उसका वायलेशन होता है तो वो इलीगल स्ट्राइक मान ली जाएगी। सेकेंड, कॉन्टिन्यूशन डिस्पाइट गवर्नमेंट प्रोहिबिशन। गवर्नमेंट ने अभी स्पेसिफिक नोटिस दिया है या एक नोटिफिकेशन निकाला है कि अभी अभी इस पीरियड के अंदर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप कंपनीज में कर रही है, कंपनी कर रही है लॉकआउट या फिर वर्कर कर रहे हैं स्ट्राइक, तो वो जो है इलीगल माना जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, व्हेन अ स्ट्राइक और लॉकआउट इज नॉट लीगल।
A strike or lockout shall not be deemed illegal merely because it was legal at the time it commenced and it continues during the pendency of conciliation, arbitration, tribunal or national industry. वर्कर्स ने स्ट्राइक ट्रिब्यूनल के अंदर जाने से पहले ही कर दी थी, कंसिलेशन ऑफिसर और कंसिलेशन ऑफिसर या ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी। तो इस केस में हम वेट नहीं करेंगे कि उसका कोई डिसीजन आएगा और यहाँ पर स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहेगी और वो इलीगल नहीं मानी जाएगी। नाउ सम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों साइड से, कि क्या क्या अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। एम्प्लॉयर की तरफ से अगर देखा जाए तो वो अगर इंटरफेयर करता है, वो एम्प्लॉय को थ्रेट करता है कि अगर आप स्ट्राइक पे जाओगे तो मैं आपकी सैलरी रोक दूंगा, आगे आपको ज्वाइन नहीं करने दूंगा, या उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप किसी ट्रेड यूनियन के वर्क में नहीं, किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इस तरीके की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कंसीडर नहीं की जाएगी, नहीं मानी जाएगी। स्ट्रिक्ट एक्शन जो है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट लिया जाएगा। अगर वो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है ट्रेड यूनियन को, कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को ब्राइब दे दे या उनको स्पेशल डिजिग्नेशन दे दे, इंक्रीमेंट दे दे कि आप हमारे फेवर पे डिसीजन लो, फॉर्मेशन ऑफ फेक और पपेट यूनिट यूनियंस, उसने अपने ही कुछ एम्प्लॉयज निकाल के फेक जो है उनके मेंबर्स बना दिए हैं। अनफेयर डिसमिसल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वर्कर, वो किसी भी वर्कर के ऊपर जो है वो एक क्रिमिनल केस लगा दिया है या उसके ऊपर फेक एलिगेशन लगा दिए हैं ताकि वो स्ट्राइक ना कर पाए, तो दिस इज अनफेयर। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू वर्क ब्रेक अ स्ट्राइक, अगर कोई स्ट्राइक पे बैठे हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने ये काम पूरा उठा के कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया कि भाई अब ये मेरे मेन वर्कर नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर करेंगे, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद गुड कंडक्ट बॉन्ड, फोर्सिंग वर्कर ऑन अ लीगल स्ट्राइक टू साइन गुड कंडक्ट बॉन्ड बिफोर ज्वाइनिंग इज प्रोहिबिटेड। फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी अगर एम्प्लॉयर करता है कि किसी को तो अलाउ कर रहा है किसी को नहीं कर रहा है, ये भी नहीं करना है। रिक्रूटिंग वर्कर ड्यूरिंग अ लीगल स्ट्राइक, अगर कोई लीगल स्ट्राइक चल रही है तो उस दौरान एम्प्लॉयर जो है एक नया वर्कर भी हायर नहीं कर सकता उनका काम कराने के लिए जो वर्कर स्ट्राइक पे बैठे हैं। फेलियर टू इम्प्लीमेंट अवार्ड सेटलमेंट और एग्रीमेंट, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगली बाइंडिंग अवार्ड सेटलमेंट्स और एग्रीमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। Acts of force or violence. Employer cannot use physical force or violent tactics against worker. Refusal to bargain collectively. रिफ्यूजल टू बार्गेन कलेक्टिवली, अगर जहां पर वो बोलता है कि ना मैं कोई कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला, ना मैं ट्रेड यूनियन की सुनूंगा ना मैं एम्प्लॉयज की सुनूंगा, वो भी अनलॉफुल प्रैक्टिस मानी जाएगी। और इलीगल लॉकआउट्स, यानी कि वहां पर वो कहता है कि मैं इलीगल लॉकआउट ही कर दूंगा, कंपनी बंद कर दूंगा, तो क्योंकि आप लोग स्ट्राइक पे गए हो। These all are comes under unfair labor practice and government authority will take a strict action on this case. एम्प्लॉय साइड से क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय सपोर्ट एनी, मतलब कोई भी इलीगल स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करना है एम्प्लॉय को, कि कोई भी है जैसे स्ट्राइक होने जा रही है, एम्प्लॉय कह रहे हैं हम स्ट्राइक करेंगे लेकिन हमने नोटिस नहीं दिया है, तो इस केस में एम्प्लॉयज को ज्वाइन नहीं करना है उसको और अवॉइड करनी है ऐसी सारी कंडीशन। किसी भी ट्रेड यूनियन की मेंबर्स को थ्रेट नहीं करना है कि अगर आप हमारे बिहाफ पे काम नहीं करोगे तो हम आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। पिकेटिंग, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ नॉन स्ट्राइकिंग वर्कर इज प्रोहिबिटेड, मतलब जो वर्कर स्ट्राइक पर नहीं है उनको काम पे जाने से रोकना, ऐसा करना भी जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानी जाएगी। वायलेंस करना, पत्थरबाजी करना, काम को स्लो डाउन कर देना, या घेराव करना, या मैनेजमेंट के घर पे जाकर उस पे नारेबाजी करना, पत्थरबाजी करना, डैमेज करना प्रॉपर्टी को, ये सब जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है वर्कर की तरफ से माने जाएंगे और इसके ऊपर स्ट्रिक्टर एक्शन लिया जा सकता है। और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हुई एम्प्लॉय की साइड से, एम्प्लॉयर में इमीडिएटली टर्मिनेट द वर्कर एंड दे कैन सबमिट देयर रिप्लाई टू द गवर्नमेंट एज वेल। नाउ सेक्शन 67 इज एलिजिबिलिटी फॉर ले ऑफ कंपनसेशन। ले ऑफ अभी हमने पढ़ा कि जब जेन्युइनली कंपनी के पास काम नहीं है और उसके पास रॉ मटेरियल स्टक हो गया, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से उसे ले ऑफ करना पड़ रहा है, तो उस सिनेरियो पे जैसे स्ट्राइक और लॉकआउट पे हमने पढ़ा था कि स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में कोई पैसा नहीं दिया जाता, ना एम्प्लॉय काम करता है ना ही एम्प्लॉयर पैसा देता है, लेकिन ले ऑफ की सिचुएशन पे एम्प्लॉयज को एटलीस्ट 50% ऑफ वेजेस दिया जाता है ले ऑफ की कंडीशन में, कि कंपनी काम नहीं दे पा रही है जेन्युइन रीजन से, लेकिन स्टिल 50% दिया जाएगा।
उसके अंदर जो वीकली हॉलीडेज है और जो वीकली हॉलीडेज है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसके पैसे नहीं जाते, बाकी सारी सैलरी उसको 50% जाती है। ना, अगर ले ऑफ मेरा 45 डे से ज्यादा चला, यानी कि 45 डेज तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम ही नहीं दे पाया, तो इस सिचुएशन में उसको डीम्ड रिट्रेंचमेंट मान लिया जाएगा, यानी परमानेंट टर्मिनेशन वो उसको मान लिया जाता है। उस केस में रिट्रेंचमेंट के सारे लॉ लग जाएंगे। अगर कंपनी 300 प्लस है तो उसे प्रायर परमिशन लेना है, उसे उसको नोटिस पे आउट करना है, उसको उसको जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है वो भी देना है। अब जब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हम देते हैं तो उसके अंदर जितना पैसा ले ऑफ के दौरान 45 डेज में जो पैसा दिया गया है वो सेट कर सकते हैं उसके अंदर, मतलब उसको रिकवर, मतलब उसको माइनस करके जो बाकी पैसा है वो ही खाली रिट्रेंचमेंट के लिए दिया जाएगा। ये कंडीशन तभी आती है जब 45 डेज के बाद भी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो काम नहीं दे पा रहा है वापस, और ले ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ। नाउ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन मस्टर रोल। अब वर्कर कौन माने जाएंगे? जो कंपनी के, जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री है, लेट सपोज अगर फैक्ट्री का जो मस्टर रोल है, मस्टर रोल के ऊपर उन वर्कर का नाम होना जरूरी है। तो वो वहां पर एम्प्लॉयर ऑफ एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट टू विच प्रोविजन रिलेटिंग टू ले ऑफ अप्लाइज शैल मेंटेन अ मस्टर रोल ऑफ वर्कर, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर वर्कर टू मेक एंट्रीज देयर। The muster roll serve as evidence that worker reported off duty. The worker was available for work. The worker was laid off due to reason attributable to the employer, not because of worker absence. वो आया है एम्प्लॉय, वर्कर जो है वो फैक्ट्री के अंदर आया, लेकिन आने के बाद भी उसको काम नहीं दिया गया, तो ये मस्टर रोल डेली बनाया जाएगा, देखा जाएगा कि वर्कर आया लेकिन उसको काम नहीं दिया गया। वर्कर नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस हैं जहां पर उसको रिट्रेंचमेंट करने के बाद भी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन नहीं वर्कर एंटाइटल होगा। उस सिचुएशन के लिए सेक्शन 69 यहाँ पर कहता है कि हमने टर्मिनेट कर दिया है, रिट्रेंच कर दिया है एम्प्लॉय को, नाउ हमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा एज पर लॉ, जो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। लेकिन स्टिल कुछ कंडीशन आती है जहां पर वर्कर को जो है, एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर को देने से मना कर सकता है कि भाई इसको नहीं मिलेगा। वो रिफ्यूजल के कुछ केसेस हैं। वर्कर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने उसको बोला कि मेरी कंपनी में काम नहीं है, मेरे यहाँ प्रोजेक्ट डाउन हो गया है, मैं आपको सेम एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी एस्टेब्लिशमेंट जो सेम एम्प्लॉयर की है वहां पर शिफ्ट कर देता हूँ, और जो सिचुएशन हो रही है वो 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही है, एंड वो जो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, जो आप यहाँ करते थे वही करना है, और सेम वेजेस में हम दे रहे हैं आपको। अगर ये सारे ऑफर एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को और वो लेने से डिनाई कर देता है, तो इस केस में उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, फेलियर टू प्रेजेंट फॉर वर्क। द वर्कर डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट द अपॉइंटमेंट टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर एटलीस्ट वंस अ डे। तो वर्कर जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है वर्क पे। और ले ऑफ ड्यू टू स्ट्राइक और स्लो डाउन। द ले ऑफ इज कॉज्ड बाय अ स्ट्राइक और डेलिबरेट स्लो डाउन ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्कर इन अनदर पार्ट ऑफ सेम एस्टेब्लिशमेंट। तो सेम उसमें अगर ये तीन कंडीशन मेरी फुलफिल होती है तो इस सिनेरियो के अंदर वर्कर जो है नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वर्कर रीस्किलिंग फंड। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आईआर कोड। दे वांट कि आपने अगर किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया है तो आप उसको तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में 15 डेज सैलरी दोगे एवरी ईयर की। अगर उसने 10 साल काम किया तो 15 दिन की सैलरी फॉर 10 ईयर। यानी अगर एक महीने की सैलरी उसकी बनती है 20,000 रुपीज, तो आपको उसको 15 दिन की सैलरी 10,000 रुपीज इंटू 5 साल उसने काम किया तो इंटू 50,000 रुपीज देनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक फंड वर्कर रीस्किलिंग फंड के अंदर भी सबमिट कराना पड़ेगा, जो कि हर एक एम्प्लॉय वाइज होगा। अगर लेट सपोज आपने 10 एम्प्लॉयज रिटेंच करे तो उनकी लास्ट रॉन सैलरी का 50% आपको वर्कर रीस्किलिंग फंड में सबमिट करना पड़ेगा। एंड ये वर्कर रीस्किलिंग फंड जो है उसके थ्रू एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट बनाएगी जिसके अंदर रीस्किल किया जाएगा। उनको जितने भी एम्प्लॉय रिट्रेंच हो रहे हैं वो उनको स्किल दी जाएगी ताकि वो अगली जॉब ले सके, और उनका स्किल डेवलप करा जाएगा ताकि वो अगली जगह से रिट्रेंच ना किए जाए। So this is the new concept of worker reskilling fund which is introduced in this code. Now, when dispute arises, resolution mechanism इसमें देख रहे हैं कि अगर dispute arise होता है तो क्या पैरामीटर है। तो सबसे पहले है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी जो इन हाउस बनेगी। अगर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के पास जाना है। ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के अंदर हम जा सकते हैं 1 साल फ्रॉम द इंसिडेंट।
जब इंसिडेंट हुआ उसके विद इन 1 ईयर हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीवियस रिड्रेसल कमेटी को विद इन 30 डेज डिसीजन लेना है। अगर विद इन 30 डेज वो डिसीजन ले पाती है तो ठीक, अगर नहीं ले पाती है तो मैटर जो है कंसिलेशन ऑफिसर के पास चला जाता है। एंड कंसिलेशन ऑफिसर मीडिएट्स बिटवीन पार्टीज, बोथ पार्टीज के साथ वो बातचीत करेगा। मैंडेटरी फॉर ऑल डिस्प्यूट, वो ट्राई करेगा कि कैसे इसका सेटलमेंट हो। बट अगर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा विद इन 30 डेज तो फर्दर एक्सटेंड हो जाता है 60 डेज के लिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो नाउ देयर इज अ सेकंड स्टेज ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन। तो आर्बिट्रेशन के अंदर बोथ पार्टीज का जाना जरूरी है। अगर दोनों पार्टी जाने के लिए रेडी है आर्बिट्रेशन में तभी आर्बिट्रेशन हिट करेगा, अदरवाइज वो सीधा ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। ट्रिब्यूनल के अंदर भी क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो एक कोर्ट की तरह, सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, जिसके पास पूरी पावर है। जहां पर जजेस बैठेंगे जो ओथ दिलाएंगे आपसे, वो जो एविडेंस ले सकते हैं आपसे और उसके बेसिस पर वो जजमेंट देंगे। जजमेंट देने के बाद if anyone is satisfied then it is okay, otherwise they can appeal to the appellate authority, and appellate authority is decided by the government of India, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। एंड appellate authority से भी अगर कोई नहीं होता सेटिस्फाइड तो in that case he can go to high court. So this is the whole provision कि कैसे रेजोल्यूशन मैकेनिज्म किया जाए। प्रॉपर जो की प्रोविजन है इस पूरे आईआर कोड के उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो ऊपर कवर नहीं हुआ है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि रिट्रेंचमेंट, एफटीई के केस में रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने किसी इंप्लॉय को, ये न्यू कंसेप्ट है जो नए कोड में है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वेबिनार और वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर बहुत डिटेल के अंदर है। यहाँ सिंपल, अगर हमने कोई इंप्लॉय फिक्स टर्म के लिए रख लिया, यानी अगर मैंने किसी को 2 साल के लिए हायर करा है ऑन अपॉइंटमेंट लेटर पे लिख के कि यू आर हायर्ड फॉर 2 इयर्स, एंड 2 साल के बाद उसका टर्म, क्योंकि उसका पीरियड ही पूरा हो गया, उसके बाद हम उसको कहते हैं कि भैया आप जाओ आप, तो इन दैट केस रिट्रेंचमेंट का क्लॉज यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि रिट्रेंचमेंट नहीं होता फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के केस में। वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा कि पहली बार कोर्ट ने वुमेन को पावर दी कि आप भी उसके जो है मेंबर रहोगे ग्रीवियस रिड्रेसल कमेटी के। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस है कि सभी सर्विस सेक्टर अगर म्यूचुअल कंसेंट से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर चाहे तो फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के अंदर कई सारे ऐसे केस हैं जो रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन से रिलेटेड है, या जहां पर 2 मेंबर्स की बेंच बैठेगी, यानी कि 2 जजेस बैठेंगे ताकि रेजोल्यूशन जल्दी हो जाए। डायरेक्ट ट्रिब्यूनल एक्सेस है, पार्टी में अप्रोच ट्रिब्यूनल डायरेक्टली आफ्टर फिर कंसिलेशन। पहले क्या होता था, काउंसिलेशन के बाद आर्बिट्रेशन, और आर्बिट्रेशन के बाद भी नहीं जा सकते थे। अभी पार्टीज डायरेक्टली विद इन 30 डेज कंसिलेशन के फेल होने के बाद ट्रिब्यूनल पे जा सकती है। डिस्क्रिमिनेशन एंड कंपाउंडिंग, जो छोटे ऑफेंसेस हैं, माइनर ऑफेंसेस मेड कंपाउंडेबल विद मॉनेटरी पेनल्टीज प्रमोटिंग कंप्लायंसेस ओवर प्रोसिक्यूशन, यानी कि प्रोसिक्यूशन की जगह वो पेनल्टीज दे के रिजॉल्व किए जा सकते हैं। डिजिटल प्रोसेस जो है वो बढ़ा दिया गया है। जितने भी आप अब देखेंगे कि ट्रेड यूनियन का बनाना, स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्लाई करना, या इंडस्ट्री आगे जाके जो डिस्प्यूट के केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल और कंसिलेशन ऑफिसर के पास है, ये सब ही डिजिटल हो जाएगा। वर्कर कैन फाइल देयर कंप्लेंट digitally. Then reskilling fund we have already covered, trade union recognition, expanded worker definition, a broader definition of industry, higher threshold limit, standing order threshold, notice and strike, and expanded definition of strike. So this is the general overview of this IR code. So we have covered the major provisions. If anybody wants to ask any question, so they can ask. There is one question in the chat from Mr. Chitti Babu. If a company has 500 employees, 100 out of 500 are workers. In this case, will standing order applicable for that company? Yes, applicable. If worker is crossed more than 300, it is applicable. But it is advisable if it is not crossed, then still just take a model standing paper as a general rule for your company. Is there any other question? Is a production supervisor earning rupees 17,000 per month a worker under the industrial relation code? Yes, because the threshold is 18,000. He must be a supervisor and his salary must be more than 18,000 rupees. So in that case, he is a supervisor, but salary is less than 18,000. In that case, he will be a worker. Sure.
Yeah, I have one more doubt. The company has 500 employees, and in that 100 are workers as per the class. They are below 18,000. So, will standing orders applicable to that company or No, not? it is if there is only 100 worker, in that case, standing order is not applicable. You can take voluntarily. Voluntarily you can take, but if you have a 500 worker company, na, it is not possible that is only 100 is worker. अभी क्या होगा? In your case, if you identify the workers or employees, in that case, maybe there is a high chance that 400 should be a worker and 100 must be employee. And but if it is 100, don't need to require to take any certification. You can take it voluntarily. There is one more question in the chat. Is contractual worker are also covered under industrial dispute or Bilkul, only yes. apply on? Yes. No. This is for the workers, and for the contractual employees is also considered as a worker for the industry. Okay. There is one more question. Please help us understand the layoff, retrenchment, lockout, and its applicability in the case of an establishment which has below 30 employee strength and out of which 40% is employed through contract. See, the provision of retrenchment layoff is applicable to every company, first of all. The only threshold of 300 is to take permission from the government or not. अगर 300 plus है तो they have to take written permission prior to retrench. But in case less than 300 worker, in that scenario, they can lay off, they can retrench the employee. Strike and lockout is also possible, but in that case, the permission from the government side is not required. And when we cover the workers, that include direct on-roll and off-roll employees both. Is there any other question? Akanksha, yes, my name is Chandra. Just I have a quick question to Rakesh. Can I? Yeah, sure. Rakesh, hi, good evening. Chandra here from Hyderabad. Yeah, hi. Rakesh, my query is like, as we discussed, like manufacturing industries, heavy industries, and when I compare to IT industry, the process, whatever you have explained, is very apt for other industry. Then what about the IT industry? Because IT industries, most IT companies does not follow or come under this industrial relations or other labor codes, whatever other sectors have. So in this scenario for IT companies, what is your advice? No, yes, it is applicable for IT industry as well. IT industries now comes under the industry parameters. They have to follow all the rules. Oh, from now Earlier onwards, the- IT industry also. Okay. Yes. Okay. Thank you. There are two more. Okay, thank you, Mr. Chandra. There are two more questions in the chat. For retrenchment after completion of 5 years, will the reskilling fund calculation be based on 5 years of service? No. That is only for last drawn wages for 1 month. 1 month, matlab, 15 days salary only. That's it. And the new question is there any change in OTRs? Can you please explain that? No. OT hours is 48 hours in a week. So generally, if you are working in a 6 days company, so in that case, 8 hours per day. If 5 day working, so 9 hours per day. Okay. So this is the working hours, and if you work beyond that, then in that case OT will be introduced, but there is a threshold limit. So the rules is yet to become. Every state has notified their working hours condition. What is the threshold? In central rules, it's a 125 hours per quarter. Mr. Kamal will share the PPT in the group. There is one more new question from Mr. Naresh. For Is there- reskilling fund, there is one question: is the reskilling fund calculation done, and where and how to deposit it? See, this portal is yet to become. They are working on it, and as in when the rules notified, they come out with this process ki how we submit all these reskilling fund. But this is now under process right now. Yes, you will get this PPT. We will share in the group. Also, SS code. Social Security card we will do very soon. Is there any Hello? other question? Hello. Yeah, hello. Yeah. Can you hear my voice?
Yeah, Yes. sure, sir. Yes, Yes, sir, just one question, Ajay. You have told about the fixed term employee, okay? This FT concept of under the codes. Suppose we have hired one employee under the fixed term contract for the 1 year. But after 2, 3 months, we came to know he is not performing. Whatever the task he was assigned, he was not performing well, okay? Not as per the company expectation. In that case, can we terminate him? Sir, first of all, the work performance is not comes under the retrenchment part. If any worker is not perform well, if any employee is not perform well, in that case, the PIP concept is there. You have to document it. You have to give him a chance to prepare No, sir. In their work case of 6 performance. months, Do you assign one manager to review their task, to review their performance? If he is not satisfied, then in that case, you can terminate. This is not comes under the retrenchment. This is basis of poor performance, and you must have the written proof for that, because if employee go to the court and court ask for the evidence, you should have that evidence, and this is not comes under retrenchment, but you now should have second proper question. evidence for that. Okay, done. Second question now, in such case, suppose we have to terminate them on the basis of the performance. So whether we have to pay the gratuity or not? Because in Gratuity case of comes, Hanni, see, gratuity comes under when he complete the continuous service of 1 year, and the continuous service of 1 year for 5 day working. That means if that employee cross 190 days, then in that case you have to pay gratuity. And in in 6 day sir, working, if he cross 240 days, then in that case you have to pay gratuity. Otherwise, not no, required. sir. In case of FT, suppose he has completed his year, then the employer has to pay the gratuity. Okay, Yes, this is as yes, per the code. Now, yes. suppose if the employee is not performing and the company and the employer terminate him after 2, 3 months, in that case, I am asking whether the employer has to pay the gratuity or not. 2-3 month में सर एप्लीकेबल नहीं होगा. It is not applicable in 2-3 months. They have to cover at least 190 days. So let's suppose he's not a well performer. You hired any employee for 2 years, but after Okay. 1 year you identify that his work is not good. You have to terminate that employee because of that work performance. In that case, you have to pay gratuity because he is eligible for gratuity. So minimum in case of FT, minimum period should be 190 days. Okay. Yes, for 5 day working company. Okay, now the scenario is second. If suppose after the employee completed 190 days, okay, after that employer realized that he is not performing as per the expectation, then the employer has to pay the gratuity. Gratuity, yes, 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 yes. In that case, employee can ask. Huh? Yeah, then the employer have to pay gratuity after that. Okay, okay, right. There are 2 more new questions in the chat. Also, need one more clarity. Is there any changes in the liability of gratuity payable or payable to contractual employee? So company should have booked the provision of gratuity related to contractual employee. Yes. Is there any principal employer responsible for resolving a representation received from the worker of contracted firm working in industrial establishment of principal employer? If he work in their premises, if the worker works in any premises which is related to principal employer and dispute related to their service condition, so in that case, the principal employer will become the first party and contractor become the second party. Principal employer is responsible. Is there any more questions? If anybody has to ask, please feel free to ask. I guess we can just end. Hi, Akanksha. This is Devraj here. Just one point which I wanted to clear. I mean, sorry, I had asked in the same question in the chat. I just wanted to. Sir. Okay. So, who is liable to pay the gratuity to the contractual employees? Is it the principal employer or the contractor? Because there is no direct employer-employer relationship between the principal employer and the contractual employee. Just understand the basic rule. The owner of premises is the ultimate liable person.
So, the premise owner is principal employer. He is the primary responsible to pay gratuity. However, contractor is paying gratuity to their employee, and they recover this from the principal employer. So, but the prime responsibility is on principal employer to pay that gratuity. All right. I guess there are no more questions. We can end the webinar here then. Okay, thank you so much. You can also share that last slide in which there was a WhatsApp group icon. We were sharing the PPT. So you all can scan that and you can directly go to our WhatsApp group. So you can ask questions there. Also, you can reach out to us on this email ID. And this was the number. We will share this PPT to everyone, and we will come soon with the another labor code on wages 2019 Yeah. soon. Thank you everyone for joining. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Thank you.